لیڈر ہوتا ہی وہی ہے جو پوری قوم اور ملک کو متحد رکھتا ہے. کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ سچی پوچھیں تو وہ ایک انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہے جو وہ اپنی فوج کو دیتے ہیں. پر وہ کیا لیڈر ہوگا جو صبح اور بات کرے دوپہر کو اور بات کرے. اکارڈنگ ٹو لا تو عمران خان نے کوئی ایسی بات کی نہیں کہ جس پہ کسی بھی قسم کی کنٹمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جا سکتی. نادانی کے اوپر ایک اور نادانی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ خامس منہاس. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے فیصل آباد جلسے میں فوج کی قیادت کے متعلق جو بیان دیا ہے اس سے ملک میں ایک سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے ایک سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر عدالت سے کسی قسم کے ریلیف کی توقع نہ کی جائے. ناظرین، کیا اس سے عمران خان کے سیاسی مستقبل کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے پاس موجود ہوں. یہاں پر آج ہم وکلاء سے بات کریں گے، ان سے یہ بات پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کا آگے ہی ایک توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے، ان کا سیاسی مستقبل خراب ہو سکتا ہے اور اس توہین عدالت کے کیس کا مستقبل کیا ہوگا. آج ہم یہ بات وکلاء سے پوچھتے ہیں. آئیں میرے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام؟ نصر اللہ اولک ہے جی نام. اچھا اولک صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی آگے ایک کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ جسٹس زیبا والے کیس میں، تو اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد جلسے میں فوج کی اعلیٰ قیادت کے متعلق بات کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب عطر من اللہ صاحب، انہوں نے ایک سماعت کے دوران ریمارکس دی ہیں اگر ایسی چیزیں رہیں گی یا چل رہی ہیں تو اس میں پھر وہ ریلیف کی توقع نہ عدالت سے کی جائے. مجھے یہ بتائیں، کنٹمپٹ کا آلریڈی کیس چل رہا ہو اور اس کے اوپر پھر ایسی بات کر دی جائے تو کنٹمپٹ والے کیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو قوم اور ملک ہوتا ہے اس کو متحد رکھا جاتا ہے. لیڈر ہوتا ہی وہی ہے جو پوری قوم اور ملک کو متحد رکھتا ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق بات کرتا ہے. جس لیڈر کو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور اس کو آئین کی حدود اور قانون کی حدود اور قومی تقاضوں کا احساس نہیں ہے، وہ لیڈر ہی نہیں ہے. پہلی تو بات ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. باقی رہی عمران خان کی حد تک بات، تو عمران خان کا پہلے زیر کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ کا. اور کنٹمپٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا پروسیڈنگ میں معذرت ہوتی ہے، اپالوجائی کرتے ہیں، تو وہ کیس ادھر موجود تھا. کورٹ نے وقتی طور پہ اس کو تھوڑا سا ریلیف دیا لیکن اس نے پھر ریپیٹڈلی وہی بات کر دی. تو اگر کسی ادارہ ہے، آرمی کا ادارہ ہے یا آرمی چیف کا معاملہ ہے، اگر اس پہ ان کی کوئی رائے ہے، اوپینین ہے، تو ان کو ایک ذمہ دار فورم پہ بات کرنی چاہیے. پبلک کے اندر بات کرنے کا مطلب ہے انتشار پھیلانا، اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بونا، اور ادارے کے ہیڈ کے بارے میں اس طرح کے پبلک میں کمنٹ دینے کا مطلب ہوتا ہے انتشار پھیلانا. تو میرا خیال ہے عمران خان کو اس معاملے کے اندر اپنے رویے کو ذمہ دارانہ رویہ بنانا چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اس کے بعد ایک ایسی پھر حرکت کا ہو جانا، تو مجھے بتائیں کہ جج صاحب کی بھی جو ریمارکس ہیں وہ برہمی والے ہیں، تو کیا اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ انہیں اس میں کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہیوی کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے؟ دیکھیں، فیٹ آف دا کیس کیا ہونا ہے یہ تو آگے پتہ چلے گا، کورٹ کیا کرے گی. لیکن کورٹ نے آبزرویشن دے دیا ہے کہ بھائی ایک چیز کہ بیہیویئر، ایک سوچ وہ پہلے ہی چیلنج ہوئی ہے وہاں پہ، تو پھر اسی کو ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ اپنی سوچ میں اور اپنے رویے میں ریویو نہیں کر رہا. تو ڈیفینیٹلی وہ چیز چونکہ کورٹ میں چیلنج ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب مزید اگر انہوں نے یہ رویہ جاری رکھا تو کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا، میرا نہیں خیال یہ. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب نعمان قریشی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اٹس آنر فار می. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. حکم کریں. سر، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے فیصل آباد جلسے میں فوج کی اعلیٰ قیادت کے متعلق جو بات کی اس پر سیاسی طور پہ تو بھونچال آیا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے کہ اگر ایسی جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پر عدالت سے کسی قسم کے ریلیف کی توقع نہ کی جائے. کیا ان کے یہ بیان سے ان کے آنے والا جو مستقبل ہے، جیسا کہ ان کے کیسز چل رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ آپ ذرا بتائیے. بہت سارے کیسز میں کنڈکٹ اور کریکٹر آف دا پارٹی جو ہوتا ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں
वो सच्ची पूछें तो वो एक इंसल्टिंग एटीट्यूड है जो वो अपनी फ़ौज को देते हैं, ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड है, स्कैंडलस है, नहीं होना चाहिए। इससे फ़ौज की, हमारी नेशन की, और ऐसी फ़ौज जो एक हिस्ट्री कैरी करती है और दुनिया की आला फ़ौजों में से एक फ़ौज है, उसकी डिग्निटी शेक होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी शेक होती है, उसकी प्रेस्टिज शेक होती है, उसकी ऑनर शेक होती है, और ये इजाज़त किसी को नहीं देनी चाहिए। जब तक ये खुद रहे, इनको लाने वाले कौन थे, अगलों को लाने वाले कौन थे, आज तक जो लाते रहे वो कौन थे, इन्हें अब याद आया। जब ये 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, ये बातें तब भी कर सकते थे, तब क्यों नहीं की? तो जिससे ये पता लगता है मेलाफाइडीज़ पे बेस करता है, बदनीयती पे बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। इससे कौम का शर जो है वो शर्म से झुकता है। अब रह गई बात के ऑनरेबल कोर्ट ने हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जो बात की है, देखें मैटर पेंडिंग है, मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कॉन्टेम्प्ट किसकी हुई है? कोर्ट की हुई है कॉन्टेम्प्ट। और जिस तरह से ये बातें की जा रही हैं, कोर्ट खुद जिम्मेदार है। कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, सबॉर्डिनेट जजेस के, उनके डेकोरम का ख्याल करना है, उनकी डिग्निटी का ख्याल करना है। जज कौन है ये नॉर्मली मैटर नहीं किया जाता, मगर तकद्दुस और एहतराम एक अदालत का होता है। हम बतौर मुस्लिम माशरा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काजी ने बुलाया, तो जब वो कोर्ट में एंटर हुए हैं तो जज साहब ने, काजी साहब ने कहा जी अमीरुल मोमिनीन, तो उन्होंने कहा ये पहली नाइंसाफ़ी है जो तूने कर दी है, मैं तेरे सामने बतौर पार्टी आया हूँ, मैं तेरे सामने बतौर अमीरुल मोमिनीन नहीं आया, तो मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के एड्रेस न कर। हम सबको ये समझना चाहिए कोर्ट कहते किसको हैं, कोर्ट होती क्या है। वही कोर्ट थी जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नोटिस किए, वो कोर्ट में अपीयर हुए, यहूदी के ख़िलाफ़ केस सुना गया और फाइंडिंग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ आई, पर उन्होंने मानी क्योंकि कोर्ट थी। सिर्फ इस कौम की बात नहीं, पूरी दुनिया में देख लें, जब तक जो कौम कोर्ट का, अदालतों का एहतराम करना नहीं सीखती, वो लोग तरक्की नहीं करते हैं। ये तो सारे सिस्टम को हाईजैक करने वाली बात होगी कि जज भी गलत हो गए, फ़ौज भी गलत हो गई, सारे डिपार्टमेंट भी गलत हो गए, सारे ही चोर हो गए, सिर्फ एक ही साध रह गया, एक ही नेक रह गया इस कौम के पास, और वो इमरान खान साहब रह गए। ये उनकी खाम ख्याली भी है, पता नहीं उनके पास बैठे लोग उन्हें क्यों नहीं इन बातों की तरफ आगाही करते कि उनके कहे फिक्रे। अब आपके मुल्क में क्या है, लोग पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, करैक्टर नहीं देखते। अब इमरान खान कुछ हलकों में बतौर पर्सनालिटी पसंद किया जाता है कि जी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, सारी उम्र फलां जगह गुजारी है, ये काम किया, वो काम किया, वर्ल्ड कप जीत के लाया। अगर वो वर्ल्ड कप जीतना एक मेरिट है, तो वर्ल्ड कप इस मुल्क में जहांगीर खान बहुत दफ़ा जीत के आया, जानशेर खान बहुत दफ़ा जीत के आया, तो उनको भी पकड़ के प्राइम मिनिस्टर कर दें। एक एबिलिटी की बात होती है, सलाहियत की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है। ये सारी बातें हों तो फिर ऐसे शख्स को लीडर कहा जाता है। पर वो क्या लीडर होगा जो सुबह और बात करे, दोपहर को और बात करे, फिर शाम को और बात करे, और ऐलान ये कहे कि ये जो मैंने यू टर्न लिया है, कल जो बात की थी आज नहीं बात कर रहा हूँ, ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। पॉलिटिक्स नहीं होती, दुनिया की पॉलिटिक्स होता है। हम एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का एक सर्कल है हमारे गिर्द, हमारी डेमोक्रेसी इस्लामिक डेमोक्रेसी है, उसके गिर्द एक सर्कल है। हमारी डेमोक्रेसी भी दुनिया से अलग है, हमारा जुडिशल सिस्टम भी दुनिया से अलग है। इसको अच्छा होना चाहिए, लीडर को इनके बारे में अच्छा कहना चाहिए, ना कि जजेस पे वो फिल्थी लैंग्वेज यूज़ की जाए, एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज़ की जाए, उन्हें थ्रेट किया जाए, उनके काम में मदाखलत की जाए। अगर उन लोगों के पास तो इख्तियार है, जज साहब उनके फैसले बोलते हैं, पर लीडर अपना स्टेडियम में खड़ा होकर, सड़कों पे खड़ा होकर इस तरह बात करेगा तो लोग समझते हैं कि जो मेरा लीडर कह रहा है शायद ठीक कह रहा है। जबकि इमरान खान साहब इंतहाई गलत रविश एक दे रहे हैं, आने वाले वक्तों के लिए भी, अपनी कौम को भी, और मौजूदा हालात को वो बिल्कुल आदा नहीं कर रहे। वो बिल्कुल नहीं देख रहे कि हम किस जगह पे ये कौम खड़ी है और क्या करना चाहिए। रह गई बात आपकी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने कोई पहली दफ़ा ये टेकअप किया मैटर। इससे पहले जब जब कोर्ट को लगा कि हमारी तौहीन की गई है, हमारे फैसलों की तौहीन की गई है, तो कोर्ट ने पूरा आड़े हाथों लिया। आपके सामने ताज़ा दौर की मिसालें हैं, निहाल हाशमी अंदर, तलाल चौधरी अंदर, दानियाल अजीज़ अंदर, और इससे हट के भी लॉयर्स कम्युनिटी भी। मैं जिस उस्ताद का शागिर्द हूँ वो मेरे वालिद भी थे, मेरी खुशबख्ती, और 1976 में उन्हें भी कॉन्टेम्प्ट में सज़ा हुई और पूरे 6 माह के लिए सज़ा हुई।
अब अगर एक वकील, एक वकला कम्युनिटी का जो नुमाइंदा है, लीडर तो नहीं मैं कहता, नुमाइंदे थे, आजिज़ थे, अगर उन्हें 6 माह की कैद हो सकती है तो इस साहब बहादुर को क्यों नहीं हो सकती? इनके लिए कोई अलहदा स्टैंडर्ड्स आएंगे, कोई अलहदा पैरामीटर्स होएगा, कोई अलहदा क्राइटेरिया होएगा। कुरैशी साहब ये बताइएगा कि आम तौर पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें आप, क्योंकि ये केसेस आप देखते रहते हैं, लोगों को क्या क्या सज़ाएं होती हैं, क्या कंपनसेशन है, ये ज़रा कानून हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। कानून यही होता है और पैरामीटर्स भी यही होते हैं कि फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे मुझसे कोई कंटेम्प्ट हो गई है, अगर मैं जाता हूँ कोर्ट में अपीयर होता हूँ और मैं अपनी वो जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करता हूँ, जो कि रविश रही है हमेशा दुनिया में कि चलो जी कंटेम्प्ट हो भी गई है, मैं अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ता हूँ, मुझे जो है वो माफ़ी दे दी जाए, तो बहुत दफ़ा कंटेम्प्ट की भी हो तो अदालत नरम रवैया रख लेती है कि इसके कंडक्ट से, इस बंदे के करैक्टर से और मूवमेंट से साबित हो रहा है कि ये शर्मिंदा है अपने कहे अल्फाज पे और अपनी की हुई कंटेम्प्ट पे, जिस वजह से बहुत दफ़ा वो माफ़ी भी दे देते हैं या सज़ा में कमी कर देते हैं या पनिश करके झाड़ झूड़ के वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब रवैये इस हद तक हार्श हो जाएं और इस हद तक कंडेमनर एडमेंट हो कि मैंने रोज़ ही एक कंटेम्प्ट करनी है, मेरा क्या कोई कर लेगा, तो इस मुल्क का हर बंदा कल को आके सड़कों पे कोर्टों का यही हाल अदालतों का करेगा जो कि इमरान साहब कर रहे हैं। सर आगे भी एक केस जो है वो जो जज साहबा हैं ज़ेबा, उनका एक केस चल रहा है, अभी उस पर भी उसका फ़ैसला नहीं हो पाया, उसके बाद ये उसके ऊपर ये चीज़ आ गई है। अब मुझे बताइएगा कि क्या यानी ये जो रविश है अदालत इसे कितना इस चीज़ को पार्डन करेगी, इस पे कितना इस पे यानी वो क्या नुक्ता आप क्या समझते हैं अदालत? देखें वो जो हमारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहबा थी, हर जज हर अदालत मुकद्दम होती है, मोहतरम होती है, चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो सिविल जज 3rd क्लास क्यों ना हो, मैजिस्ट्रेट क्यों है, उसे एक इख्तियार दिया गया उसके इल्म की वजह से, उसकी अहलियत, उसकी काबिलियत की वजह से। और ये जजों को पता है कि उन्होंने एक दिन चले जाना है, उन्होंने अल्लाह को भी जवाब देना है, दे विल बी आंसरेबल टू देयर गॉड, दे विल बी आंसरेबल टू द नेशन, दे विल बी आंसरेबल टू द लिटिगेंट्स। ये अदालतें मेरे लिए तो नहीं बनी, ये एक कॉमन सिटीज़न के लिए बनी है, मेरी वकालत मेरी कमाई के लिए नहीं है, जजों के लिए नहीं है, बट ये सर्विस के लिए कि डू द जस्टिस, डू द कंप्लीट जस्टिस अमंग द पार्टी। तो जिन इदारों ने इंसाफ करना है उन पे इस हद तक तनकीद जो ह्यूमिलेटिंग हो, स्कैंडलस हो, इंसल्टिंग हो, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रहेगी बात सबॉर्डिनेट्स की, कंटेम्प्ट की, तो वो खुशकिस्मती कह लें बल्कि बदकिस्मती है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार नहीं है। वो एट दी बेस्ट एक रेफरेंस बना के जो है सुपीरियर जुडिशरी वहाँ पे भेज सकते हैं और फिर वो एक्शन लेते हैं। बट मैं समझता हूँ कि अच्छा है अगर उनके पास भी ये पावर्स नहीं है, लेकिन अगर पावर्स सुपीरियर कोर्ट्स के पास हैं तो वो फिर अपनी कोर्टों का दिफा खुद करें, ताकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अपनी अदालतों में बैठे खुद को महफूज करें। जो जज साहब आती उनकी एक फैमिली होएगी, वो किसी की बेटी होएगी, किसी की बीवी होएगी, किसी की बहन होएगी, तो पूरे ख़ानदान पे बल्कि एक नस्ल पे इन्होंने वो उसको फिक्रा कस के तो उसके साथ ज़्यादती की, उसकी बेइज्जती की, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप कौन है? अगर आपको इख्तियार है, आपके पास आए गलत फ़ैसला होता है, जाएं उसके ख़िलाफ़ जाके अपील कर लें, रिवीजन कर लें, रिट कर लें, गो टू द टिल द एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं। आपके पास इतने फोरम्स हैं, बजाय कि ये कहने के कि ये जज ने किया और ये जज ने नहीं किया। अगर आपको किसी जज पे एतमाद नहीं है तो उसके खिलाफ भी लॉ बोलता है, जाएं उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर दें, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को एप्लीकेशन दे दें कि हमें ये इतला मिली है, जो कि बुनियाद पे होनी चाहिए, ऐसे सरसरी बातों से नहीं कि क्योंकि इसने फैसला हमारे खिलाफ दे दिया, क्योंकि इसने रिमार्क्स हमारे खिलाफ दे दिया लिहाजा ये जज गंदा हो गया। इन बातों को सनाब करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के ये रिमार्क्स कि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस पे हम किसी किस्म का यानी अदालती रिलीफ की तवक्को न की जाए, ये रिमार्क्स और उधर से इमरान खान साहब का जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, आप मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? ये तो बरहमी का इजहार लग रहा है।
भरमी का इजहार तो ये है ना कि कंटेम्प्ट का मैटर चल रहा है और कंडेमनर जो है वो फिर बाज नहीं आ रहा, वो अपनी उस कंटेम्प्ट को बार बार रिपीट किए जा रहा है। बार बार रिपीट करने से जो मैंने पहले बात की, कंडक्ट और कैरेक्टर ये मैटर करते हैं। मुझसे कंटेम्प्ट होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ अदालत से जाके, अदालत माफ़ कर दे ना करे उसकी सवाब दीद है, उसकी डिस्क्रिशन है। पर अगर मैं रोज़ यही अमल करूँ और उस पर इतराऊँ भी कि मैंने बड़ा अच्छा कहा, देखें बात करना, अल्फाज तो तोले जाते हैं लेकिन अंदाज भी तोला जाना चाहिए। इतना वो कड़ा सा और सख्त सा अंदाज और इतने सख्त से अल्फाज जो रह गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो बतौर वकील भी बहुत कॉम्पिटेंट रहे, बतौर जज भी कॉम्पिटेंट रहे हैं। ये एक किस्म की दिल आज़ारी वाली बात है। शायद कोर्ट के दिल में हो कि हम इसको माफ़ कर दें, लेकिन जिस तरह से ये अपने एक्ट को रिपीट करते हैं तो वो कोर्ट ने भी कह दिया कि चलो जी हम आपको, उससे पता ये लगता है कि अगर हम आपको रिलीफ देना भी चाहते थे तो शायद यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम वो रिलीफ आपको दें। वो इस वजह से, लेकिन जजेस के फैसले बोला करते हैं, जजेस ये ना भी बात करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि कोई नहीं है। जजेस के फ़ैसले बोला करते हैं नाज़रीन, चलते हैं और वकला की जानिब वो इस मुतालिक क्या कहते हैं ये आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और सीनियर वकील जनाब अदनान कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें ये जो चल रहा है मामलात, इसमें अदालत से किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को न कीजिए। इमरान खान साहब का ऑलरेडी तौहीन अदालत का उधर केस चल रहा है और उसके ऊपर दोबारा ये चीज़ यानी एक जलसे में बात करना, किसी इदारे के हेड के मुतल्लिक़ ये बात करना, इसमें आपको जस्टिस साहब की बरहमी नज़र नहीं आती? और एक ये दूसरी बात हमें ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के वो जो चल रहा है केस, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं जी, मेरी नज़र में तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो इमरान खान ने कोई ऐसी बात की नहीं कि जिस पे किसी भी किस्म की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हों। उन्होंने तो जनरली एक बात की है और वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की हिस्ट्री ही ऐसी रही है। और इससे पहले जितने भी पॉलिटिशियंस आए उन्होंने तो इतनी सख्त बातें की और मैंने तो उसको क्लोजली भी वॉच किया है, उसकी इमरान खान की तकरीर को भी। उसमें तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अगर कहा जाए कि उन्होंने कुछ ऐसी बात की है कि उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं और किसी भी किस्म का अगर कोई जज उस पर बरहम भी हो रहा है तो मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इस जो आगे कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, ऑनगोइंग जो केस है, वो केस क्योंकि चल रहा है, उधर से फिर जज साहब का ये बयान आ जाना, क्या ये जो बरहमी है उस केस पे असरअंदाज हो सकती है? नहीं भाई, मेरी इल्म के मुताबिक तो ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है। ये तो एक्चुअली एक मीडिया ट्रायल चला रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया पे आके बातें कर रहे हैं जो अदालतों के बाहर से भी नहीं गुजरे। तो हम तो चलें थोड़ा बहुत उनसे तो बेहतर इल्म रखते ही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये आप प्रज्यूम करें कि वो जज बरहम हुआ या नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल नहीं है और उस स्टेटमेंट से किसी तौर पे भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की नहीं जा सकती। और उससे पहले इतनी पॉलिटिशियंस ने सख्त बातें की हैं अगेंस्ट आर्मी चीफ, अगेंस्ट आर्मी और ये जजेस के ख़िलाफ़, मगर आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुई। तो ये दोहरा मेयार तो होना नहीं चाहिए कि उन सब को कुछ कहा ना जाए और इसके ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट इतनी सीरियस और डेंजरस नहीं है उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं। ये तो दुरुस्त नहीं है। ये जो केस चल रहा है कंटेम्प्ट का, वो जो जस्टिस साहब हैं अपने वो ज़ेबा, तो उनके वो जो मामला चल रहा है उस केस में इमरान खान साहब की आप बाइज़्ज़त बरीयत देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जी, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर उसको देखा जाए तो बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी होते हैं इमरान खान। हाँ जी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, थ्रेट नहीं उन्होंने दी आपके। वो तो देखें, हर सिटीज़न का राइट है भाई कि अगर वो किसी कोर्ट के पास किए हुए ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको असेल करे, एपिलेट फोरम में जाए, रिवीजन फाइल करे, रिट फाइल करे। तो उन्होंने ऐसी ही बात की है। मुझे ये बताइएगा कि एक पब्लिक जलसे में खड़े होके किसी जज के मुतल्लिक बात करना, उसको थ्रेट करना कानून की नज़र में कैसा है? जी भाई, ये आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने जज को थ्रेट किया है, लेकिन अगर उस तकरीर के कंटेंट्स को पेरूज किया जाए माइन्यूटली भी तो वो कोई ऐसी कंटेम्प्ट है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अगर साबित हो जाती
تو ثابت کرنے کے لیے وہ اس کے الفاظ ہی بتائیں گے نا کہ یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے یا نہیں. انہوں نے جج صاحبہ کو, آپ نے بھی وہ تقریر سنی ہوگی, کیا اس میں انہوں نے جج صاحبہ کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کروں گا ایسا ویسا, میں کورٹ کو آ کے توڑ دوں گا, میں گرا دوں گا, میں کیا کروں گا, ادھر آدمی لے کے آؤں گا, عدالت پہ حملہ کر دوں گا, ایسی تو کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو کہا میں دیکھ لوں گا آپ کو, میں آپ کے خلاف جو بھی لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں وہ سیل کریں گے وہ, اور وہ ہر سٹیزن کا حق ہے انکلوڈنگ عمران خان. آپ کو دیکھ لوں گا قانون اس کی تشریح کیسے کرتا ہے؟ اور ایک بھائی ایک ذرا وہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, مطلب انہی کورٹ سے بھٹو ٹرائل بھی ہوا تھا. آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں, ہم یہ بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, ہم تو کسی کورٹ میں اس کیس کا ریفرنس بھی نہیں دے سکتے. آپ کہیں کوٹ کر سکتے ہیں اپنے میڈیا پہ, کیونکہ وہ فیصلہ ہی غلط تھا, وہ اکارڈنگ ٹو لا تھا ہی نہیں. اور وہ کنہوں نے پاس کیا تھا؟ ہائی کورٹ کے ججز نے پاس کیا تھا نا. تو کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ آنسر ہے کہ وہ فیصلہ بالکل درست نہیں تھا. سو ایسے اور بے شمار فیصلے ہیں جن کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جوڈیشری نے پہلے فیصلے کیے تھے سارے فیصلے تو اتنے اپریشیٹیبل نہیں ہیں, اور وہ جو الفاظ تھے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتے بھائی. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ زاہد محمود گرایا صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر یہ بتائیے گا کہ ایک کیس آگے ہی آلریڈی کنٹیمپٹ کا چل رہا ہے, اس پر خان صاحب کا پے در پہ کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے, تو عدالت نے اس پہ یہ کہا ہے, یعنی کہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ کسی قسم کے ریلیف کی توقع نہ کی جائے. سر یہ ریلیف کیسا ہے؟ تب لیٹ دی ڈو کہ کورٹ کیا کرتی ہے, کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس کے میرٹس دیکھنے ہیں, ڈی میرٹس دیکھنے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اس کو تو غیر قانونی حرکت ہی کہوں گا, یا غیر اخلاقی بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ابھی میٹر کورٹ میں پینڈنگ ہے اور آپ اس پہ جو ہے نا اپنا ویو یا اس طرح کی باتیں, اور پھر مطلب اس پہ جیسے کرائم پہ کرائم اور مطلب نادانی کے اوپر ایک اور نادانی کرنا, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے خود ہی بندہ اپنے آپ کو پھنسانا چاہتا ہو یا اپنے اینٹی کوئی جو ہے وہ ریلیف, یہ ریلیف والی تو بات نہ ہوئی, یہ تو اینٹی ریلیف بات ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اپنا مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک بات پہ اٹے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. یہ کسی اچھے سیاستدان کا شیوا نہیں ہوا کرتا کہ وہ اداروں کے ساتھ اور ڈائریکٹ بلا وجہ الجھے. ہاں مطلب اس پہ میرٹس اینڈ میرٹس اس پہ جو ہے وہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں. کورٹ سر آپ اگر آپ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آتا یا آپ کے مزاج پہ پورا نہیں اترتا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پراپر ریلیف نہیں ملا, تو سیکنڈ کورٹ مطلب یو میں گو دیر, مطلب ہائی اپ سر دیر. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے یہ کم ہے, اور یہ غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے. اور آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو جلسے جلوس ہیں, پبلک پلیسز ہیں, وہاں پر کھڑے ہو کے جوڈیشری کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اداروں کے سربراہان کو ڈسکس نہ کیا جائے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ مطلب بندے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے میرے خیال کے مطابق. جن حالات میں جو ہے وہ خان صاحب ابھی گرے ہوئے ہیں, یہ جان بوجھ کے اپنے لیے اپنے آپ کو سرکل کرنا چاہتے ہیں. لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کو ابیوزو لینگویج یا ریف لینگویج, اور وہ بھی مطلب کورٹس کے خلاف یا آرمی کے خلاف یا اداروں کے خلاف. کہ خان صاحب نے جب جسٹس وہ زیبا ہیں ان کے متعلق جب بات کی تھی, پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے, پبلک کے جلسے میں کھڑے ہو کے انہیں کوئی چیز کہنا, کیا یہ قانون کی نظر میں غیر قانونی ہے, یا کوئی بھی بندہ یا کوئی پولیٹیکل فگر کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے؟ یہ ذرا بتائیں. میں اس پہ اس کو کنڈیم نہیں کروں گا, اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے مطلب اتنا ہی کم ہے. یہ ایک ایسی بیوقوفانہ یا احمقانہ حرکت ہے کہ جس کو کوئی بھی سرائے گا نہیں. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اینٹی لا بات ہے, یہ کورٹ ڈیکورم کو خراب کرنے کی بات ہے, عدالتوں کے تقدس کو مجروح کرنے والی بات ہے. اور وہ ہماری بیٹی ہیں, ہماری بہن ہے, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, اور نو شی از جج. تو اس کے ان ججز کے بارے میں یا کورٹس کے بارے میں اس طرح کے جو ہے وہ مطلب جو گیدڑ ببکیاں میں کہتا ہوں اس کو, کہ نہیں ہونی چاہیے. بندے کو ہمیشہ کوئی بھی نہ کرے, کوئی بھی نہ کرے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عام بندے کی اور پولیٹیکل فگر کی, اور بڑا نون ہو, بڑا نام ہو, لوگوں کی بڑی لائکنگ ہو, قانون ان دونوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ ایک عام بندے کو اور ایک عمران خان صاحب کے لیول کے بندے کو قانون کیسے دیکھتا ہے؟
ये बताइए। आम बंदे का विजन तो बड़ा थोड़ा होता है, मतलब बहुत मतलब कम सोच होती है हम लोगों की, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर होने के हवाले से, एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न होने, और मैं नहीं समझता कि उनको कम चाहा जाता है, लेकिन वो अपने आप को, मैं समझता हूँ जो है ना, वो अपने आप को खुद ही डीरेल कर रहे हैं, अपने लिए खुद ही मसाइल बगैर किसी वजह के। यानी बंदे को बोलने से पहले सोचना चाहिए, थिंक बिफोर स्पीक, ये लिखी पढ़ी बात। और ये पढ़े लिखे बंदों को पता है, जो अनपढ़ बंदे हैं वो ही कोई ऐसी बात करेंगे, मतलब जहाँ पे आम लोगों का, इमरान खान साहब का कोई तकाबल बनता ही नहीं है। इमरान खान लीडर हैं, बाकी पब्लिक है, और पब्लिक तक इस तरह का मैसेज देना भी एक लीडर के शान शान नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी लीडर को, किसी कायद को, जो कल को अल्लाह करे ये कोई विन करते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, या दोबारा से अल्लाह ताला इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, बट ऐसी की हुई बातें कौम जो है ना वो के लिए बड़ी, मैं समझता हूँ ऐसी तो कोई नहीं की जा सकती। और ये जो केस उनका ऑलरेडी चल रहा है, क्या इसका मुस्तकबिल आप तारीख देख रहे हैं, कोई मसला हो सकता है खान साहब को? इट्स सो मच ऑब्वियस बात है कि आप एक पब्लिक प्लेस पे खड़े होके ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपके लिए रवाई नहीं है, आपके लिए जायज़ ही नहीं है, कानून परमिट ही नहीं करता कि आप इस तरह, मतलब अगर आपको नाराज़गी है तो यू मे गो देयर, मत किसी और कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं और बात कर सकते हैं। ये पढ़े लिखे बंदे की निशानी नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस के ऊपर इस तरह की जो है ना वो गिदड़ बबकियाँ करके इस तरह की, बाद में फिर कहता रहे जी मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। ये ऐसे है कि जैसे मेरे निकाल के कोई बच्चा भी ऐसे करता होगा। अकल की बात है, एक दानिशमंद लीडर होने के साथ साथ उन्हें अपने इस मैटर, अपने इस चीज़ को, मेरा मशवरा है कि उन्हें रिव्यू करना चाहिए, उन्हें मतलब सॉरी कर लेना चाहिए, मतलब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से बंदा छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने से बंदा छोटा नहीं होता, बात करने से पहले तोलो फिर बोलो, ये वाली इसके मुस्ताहक है। और यकीनन इमरान खान का जो लेवल है, वो लीडरशिप है जो उनकी है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और बात करने से पहले उन्हें देखना चाहिए कि क्या इदारों के सरबराहान को, या ऐसे लोग या ऐसे इदारे या उनके अफराद को पब्लिक प्लेस पे डिस्कस करना है या नहीं, ये देखना होगा। आज हमने आपको कानूनी यहाँ पर जो राय है वकला की, वो आपको सुनवाई। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दें इजाज़त। अल्लाह अपनी नासिर।